Hello, students. Welcome back after a long spell of COVID 19. In this presentation, we start Physics, Paper 1, Unit 3, Lasers, and we shall be studying about laser characteristics. Lasers. Laser is the short form for light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Now, amplification means to increase the amplitude of a light wave. We know light travels in the form of a wave और हर wave की एक characteristics होती है एम्पलीट्यूड. सो अगर किसी मेथड से उस एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तो हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन हैज टेकन प्लेस. सो लाइट वेव की जब हम एम्पलीफिकेशन कर देते हैं, इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेज, इट बिकम्स मोर पावरफुल. Now, this amplification of light is achieved by a process which is known as stimulated emission of radiation. Therefore, the full form is light amplification by stimulated emission of radiation. The light which we have amplified in such a manner, it has many special characteristics which are not present in the ordinary light that we get from sun or from a bulb or tube light. The characteristics are high directionality, high monochromaticity, high intensity, high coherence, which is of two types, spatial and temporal. And next we discuss these properties one by one. So the first property of lasers is high directionality. A laser beam is highly directional and it is highly collimated beam, which means it travels large distances in a straight line in the form of a parallel beam. Whereas light emitted from ordinary sources, it spreads in all direction. We can see a bulb at the bottom of this slide. The light from the bulb spreads in all the directions. चारों तरफ लाइट फैलती है, इसलिए सारे कमरे में उजाला होता है. सन की लाइट चारों तरफ फैलती है, इसलिए सारे प्लैनेट्स और पूरी अर्थ पे उजाला होता है. लेकिन लेज़र लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाती है. लेज़र की डायरेक्शनैलिटी जो है वो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस. दिस एंगल इज twice the angle that the outer edge of the beam makes with the axis of the beam, that is equal to 2 theta. We have shown it in the diagram below. और आउटर एज की अपनी एक डेफिनेशन है. आउटर एज ऑफ द बीम इज दैट पॉइंट at which strength of the beam becomes 1 by E times its value at the center. Now, अभी हमने कहा था कि लाइट, लेजर लाइट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चलती चली जाती है. So, after traveling a particular distance which is known as Rayleigh range, it starts spreading due to diffraction effects. Rayleigh range is equal to d square by lambda, where d is the diameter of the aperture. जिस aperture में से light emit हो रही है laser light, उसका diameter d और wavelength lambda. So Rayleigh range is d square by lambda. That means इतने distance तक एक laser beam straight line में चलती चली जाती है. उसके बाद डाइफ्रेक्शन इफेक्ट्स की वजह से स्प्रेड होना शुरू हो जाती है एंड द एंगुलर स्प्रेड इज गिवन बाय लैम्डा बाय टी. नाउ इन केस ऑफ लेजर्स द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ milli radians. 1 milli is 10 raised to power minus 3, so it is of the order of a few 10 raised to power minus 3 radians. In other words, in simple language, इसका मतलब ये निकला कि for every 1 meter distance traveled by the laser beam, the beam spreads by लेस देन 1 मिलीमीटर. हर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद लेजर बीम के
डायमीटर में 1 मिलीमीटर से भी कम इंक्रीज होती है, कम फैलावट आती है। इसी को अगर हम एक ऑर्डिनरी सोर्स, एक टॉर्च से निकली हुई लाइट से कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी लाइट जब 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उसके स्पॉट का साइज, उसके डायमीटर का साइज, बीम का डायमीटर लगभग 1 मीटर बढ़ जाता है। सो वी कैन सी दैट लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल। और इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि जब हम एक लेजर को मान लिया मून पे फोकस करें, वी नो मून इज lakhs of kilometer away from earth, so with the help of telescopes it can be focused on moon। तो मून पे जो लेजर का डायमीटर बना, स्पॉट बना, उसका डायमीटर जो है it is only a few kilometers and that is a proof that the beam is highly directional। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई लेजर्स की, इंटेंसिटी। द लाइट एमिटेड बाय अ लेजर has very high intensity. Intensity is defined as light energy per unit area per unit time. So the light emitted by lasers, since it gives light in the form of a narrow beam, अभी हम डिस्कस करके गए थे, एक थिन नैरो बीम की फॉर्म में ये लाइट चलती चली जाती है। सो द area of cross section of the beam is very small and therefore its energy is concentrated in a very small area, therefore its intensity is very high। और ये इंटेंसिटी का आइडिया लेने के लिए हम इसको एक 100 वॉट बल्ब से कंपेयर करते हैं, और वो भी 1 मिली वॉट लेजर को 100 वॉट बल्ब से। सो लेट अस से हमारे पास एक साधारण बल्ब है 100 वॉट का, और हम जानना चाहेंगे उससे 30 सेंटीमीटर दूर लाइट इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है। Now since intensity is energy per unit time per unit area, energy per unit time is power, so I is power divided by area। बल्ब की पावर है 100 वॉट, और 30 सेंटीमीटर दूर क्योंकि वो लाइट पूरे एक स्फीयर में फैलेगी जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर्स, तो कितने एरिया में लाइट फैली, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई into 0.3 whole square, and that gives us the value of I equal to 88.5 watt per meter square। राउंड ऑफ करें तो हम कह सकते हैं कि 100 वॉट से भी कम है। ऐसे में अगर 30 सेंटीमीटर दूर हम खड़े हैं, कोई इंसान खड़ा है और ये लाइट उस इंसान की आंख में एंटर करती है, तो आंख का जो ब्लैक पोर्शन जिसमें लाइट एंटर करेगी उसका डायमीटर अगर हम 1 मिलीमीटर ले लें, रेडियस 1 मिलीमीटर ले लें, तो जो पावर एंटर की ह्यूमन आई में, दैट इज इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द प्यूपिल, वैल्यूज पुट करेंगे हम इन क्वांटिटीज की, और पावर आई 277.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6। 277 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 वॉट। सो 100 वॉट बल्ब की वजह से 30 सेंटीमीटर दूर खड़े इंसान की आंख में जो पावर एंटर की, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 -4। ऑन द अदर हैंड एक छोटी सी पावर का लेजर ले लें हम 1 मिलीवॉट, जिसके अपर्चर का रेडियस है 1 मिलीमीटर, जिसकी बीम का रेडियस है 1 मिलीमीटर, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी डिस्टेंस इज I इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, that is 1 upon pi r square, value comes out to be 3.18 into 10 raised to power 5 milliwatt per meter square। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है लेज़र की, और वही अगर हम देखें कि 30 सेंटीमीटर दूर एक इंसान खड़ा है, उसकी आँख में जो लाइट लेज़र की पावर एंटर की, सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, पावर इज I इंटू एरिया ऑफ द प्यूपिल, एंड दिस गिव्स अस 1 मिलीवॉट। 1 मिलीवॉट यानी 10 रेज टू पावर -3 वॉट। सो 100 वॉट की 100 वॉट बल्ब की वजह से जो ह्यूमन आई में पावर एंटर की, दैट वाज 10 raised to power -4। This is due to 1 milliwatt
laser, it is 10 raised to power minus 3. So we find that power entering the human eye is much more than power due to a bulb. So laser light is much more intense than the ordinary light. और एक बहुत important precaution इसलिए हमें follow करनी होती है जब हम lab में laser use करते हैं, हमें कभी भी लेज़र में सीधे स्टेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि अपनी आँख में लेज़र एंटर नहीं करने देनी चाहिए, बिकॉज जब ये लेज़र बीम हमारी आई के रेटिना पे फोकस होगी तो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है लेज़र की कि वहाँ के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती है, और लेज़र अगर थोड़ा भी पावरफुल होगा तो वो उस टिश्यू को जला सकती है. वन कैन बिकम ब्लाइंड, सो नेवर stare into a laser beam. Next property of lasers is monochromaticity. Mono means single, chrome means color. So monochromaticity means property of having a single color in the beam. So lasers are considered to be extraordinary sources of monochromatic light, single color light, or single color indirectly means single wavelength. So लेज़र लाइट में सिंगल वेवलेंथ्स प्रेजेंट रहती हैं. सो देयरफॉर दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. अब यहां पे मैं बता दूं, नथिंग इज परफेक्ट. अगर एक परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट हो हमारे पास और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करें वेवलेंथ लैम्डा और इंटेंसिटी जो एमिट हुई रेडिएशन की आई के बीच में, तो आइडियली इट शुड बी अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इन द ग्राफ. लेकिन लेजर्स के लिए भी हमारे पास ऐसा ग्राफ आता नहीं है बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट. लेकिन लेजर्स की मोनोक्रोमेटिसिटी ऑर्डिनरी सोर्सेस से बहुत ज़्यादा होती है. सो कमिंग बैक टू दिस ग्राफ, if we draw for any source of light, a graph is plotted between wavelength and radiation intensity. तो एक sharp vertical line की बजाय हमारे पास फैली हुई line आती है in the form of this curve shown in the first figure given at the bottom of this slide. और यहाँ पे ये ग्राफ लैम्डा और आई के बीच में है. यही ग्राफ हम फ्रीक्वेंसी और आई के बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं. वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स ऑफ एन एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन की जंप करने की वजह से ये लाइट प्रोड्यूस हुई, एंड वी नो H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सो हालांकि किसी भी सोर्स से जो मोस्ट ऑफ द एमिटेड लाइट is emitted at wavelength lambda, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन कि मेन वेवलेंथ लैम्डा के साथ साथ कुछ और फोटॉन्स भी होते हैं. कुछ की फ्रीक्वेंसी लैम्डा से ज़्यादा होती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी लैम्डा से कम होती है. सो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास वो फैला हुआ कर्व आता है जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा पे होके बाकी कम इंटेंसिटी के भी फोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो द ग्राफ हैज ए स्प्रेड. फैला हुआ ग्राफ है, फैली हुई लाइन है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नहीं है. देयरफॉर द एमिशन इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक. The emission of light has a wavelength spread delta lambda. ग्राफ में हमने देखा कि लाइन में स्प्रेड है. The spread is measured in terms of delta lambda and it is known as line width. Delta lambda is the distance between 2 points on the graph जो हमारे पास हाफ इंटेंसिटी पे आए. So it is the wavelength separation between those points on the line shape plot for which intensity is half maximum. मैक्सिमम इंटेंसिटी थी जिस पे पीक आई, उस इंटेंसिटी का हाफ लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे 2 पॉइंट्स पे वो लाइन काटेगी, वो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज
delta lambda or line width. Delta lambda is also known as full width at half maximum FWHM and इसके corresponding जो frequency spread आई that is known as delta nu. ये ग्राफ हम अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ड्रॉ करें तो भी हमारे पास सेम कर्व आएगा और तब जो लाइन विड्थ आएगी दैट इज डेल्टा न्यू, उसको हम बैंड विड्थ भी बोलते हैं. So mathematically, monochromaticity is measured as the ratio of delta nu to nu. जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली फ्रीक्वेंसी न्यू है और विड्थ जो ग्राफ की आई वो डेल्टा न्यू है. द रेशियो इज नोन एज मोनोक्रोमेटिसिटी. सो इस रेशियो की जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना लाइट की मोनोक्रोमेटिसिटी ज्यादा होगी. So just to have an idea, let us compare two sources of light. एक source of ordinary light, रेड कलर की लाइट, और फिर उसके बाद हम रेड कलर का लेज़र कंसीडर करेंगे. सो ऑर्डिनरी लाइट के लिए, लाल कलर की लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्स. जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है डेल्टा न्यू की दैट इज 10⁻10 हर्ट्स. द रेशियो इज 2 × 10⁻⁻5. ऑन दी अदर हैंड एक लेज़र मान लिया सेम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ एमिट कर रहा है रेड कलर की, तो उसमें जो डेल्टा न्यू की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है दैट इज ओनली 500 हर्ट्ज. सो दैट दिस रेशियो डेल्टा न्यू बाई न्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻12. तो हम देख रहे हैं कि लेज़र की मोनोक्रोमेटिसिटी, ये जो रेशियो आया डेल्टा न्यू बाई न्यू, ये ऑर्डिनरी लाइट से कितना कम है. कहाँ ऑर्डिनरी लाइट के लिए 10⁻5 और कहाँ लेज़र के लिए 10⁻⁻12. Therefore, we say that laser is much more monochromatic as compared to ordinary light. Next, coherence. Next property of lasers is coherence. Coherence means constant phase difference. Laser is regarded as first truly coherent source of light. And coherence is a measure of the degree of phase correlation that exists in the field of light beam at different locations at different times. Two light sources are said to be coherent if the light waves emitted by them have a constant phase difference for a finite period of time. अगर हमारे पास दो waves हैं और उन दोनों वेव्स में एक फाइनाइट टाइम के लिए, फाइनाइट टाइम का मतलब होता है जितने टाइम में हम एक्सपेरिमेंटल रीडिंग ले सकें, अगर उतने टाइम के लिए दो लाइट सोर्सेज की वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे तो हम कहते हैं द टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट. यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोहेरेंस के लिए सेम फेज या अपोजिट फेज में होना जरूरी नहीं है. हालांकि हम सेकेंड ईयर में हमने कोहेरेंस ऐसे डिफाइन की थी, बट नाउ वी मेक इट मोर एक्यूरेट. फेज डिफरेंस जीरो या अपोजिट होना जरूरी नहीं है, फेज डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट. सो अगर हमारे पास कोई एक बीम है तो उस बीम के अलग अलग पार्ट्स में गुजरने वाली वेव के बीच में फेज डिफरेंस अलग अलग टाइम पे अगर कोरिलेटेड है, आपस में किसी एक फॉर्मूले से कोरिलेटेड है, देन द वेव इज सेड टू बी कोहेरेंट. और अगर दो वेव्स या एक ही वेव के डिफरेंट पार्ट्स में जो फोटोन्स प्रेजेंट हैं, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस रेंडमली चेंज होता रहता है, जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है और कांस्टेंट नहीं रह पाता, तो हम कहते हैं वो बीम नॉन कोहेरेंट है, कोहेरेंट नहीं है. यहाँ पे हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें हमने दो
अलग अलग तरह की वेव्स के ग्रुप्स दिखाए हैं। पहले डायग्राम में सारी वेव्स सेम फेज में हैं, सेम फेज में हैं, तो उनके बीच में जब इंटरफेरेंस होगी, ऑल द एम्पलीट्यूड्स विल गेट एडेड अप, वी गेट एन एम्पलीफाइड बीम। और दूसरे डायग्राम में सभी वेव्स का फेज अलग अलग है, सो द रिजल्टेंट वेव इज अ वेव जिसका हर जगह एम्पलीट्यूड कम हो गया है। So the lasers are excellent sources of coherent light. इस कोहेरेंस को हम दो तरह की कोहेरेंसेस में स्टडी करते हैं। फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर आर टू काइंड्स ऑफ coherences. First is known as temporal coherence, second is known as spatial coherence. So temporal coherence describes the phase relationship between waves observed at the same point at different moments in time. एक हमारे पास लाइट की बीम है, उसमें एक ही पॉइंट पे वी कंसिडर अ फिक्स पॉइंट ऑन दिस वेव, तो उस एक पॉइंट पे गुजरने वाली वेव के बीच में इफ एट टाइम t और थोड़ी देर बाद t प्लस dt टाइम पे अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है तो हम कहते हैं कि वेव में टेम्पोरल कोहेरेंस है। सो इन टेम्पोरल कोहेरेंस एक ही पॉइंट से गुजरने वाली वेव के अलग अलग टाइम्स पे फेजेस में अगर कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है अलग अलग टाइम तक, then the wave is said to have temporal coherence. अगर ये टाइम dt जितने टाइम के लिए एक ही पॉइंट पे वेव के बीच में कोहेरेंस बनी रहती है, अगर इस dt टाइम की वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, कितनी भी बड़ी, तो हम कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और द लाइट वेव हैज परफेक्ट टेम्पोरल कोहेरेंस। लेकिन अगर ये dt टाइम की वैल्यू लिमिटेड है, 0 से लेकर t0 के बीच में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहती है, इसका मतलब है कि अगर dt टाइम के लिए वेव के अलग अलग हिस्सों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है, तो हम कहते हैं इट हैज पार्शियल टेम्पोरल कोहेरेंस विद अ कोहेरेंस टाइम इक्वल टू t0। और इतना टाइम गुजरने के बाद वेव का फेज चेंज हो जाता है, देयर कम्स डिसकंटिन्यूटी इन द वेव। सो अ वेव can have perfect temporal coherence और it can be partially coherence, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही coherence ना हो। अगर कोई कितने भी टाइम के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह ही नहीं पाता, जिसको हम मेजर ना कर पाए टाइम को, then it is non coherent. This temporal coherence is related to the property of monochromaticity. एक वेव में जितनी ज्यादा टेम्पोरल कोहेरेंस होगी उतनी ज्यादा वो वेव मोनोक्रोमेटिक होगी। सो अ मोनोक्रोमेटिक वेव मीन्स इट हैज गुड टेम्पोरल कोहेरेंस। Similarly, if a wave has temporal coherence, it means its graph is perfectly sinusoidal. So a temporally coherent beam is a perfectly sinusoidal wave. वैसे तो हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं वेव का ग्राफ, तो हम एक लंबी सी साइन वेव ड्रॉ कर देते हैं, हम कहते हैं वेव बन गई। बट एक्चुअली जो लाइट वेव्स होती हैं वो फोटोन्स की फॉर्म में होती हैं। दैट मीन्स छोटी छोटी वेव होती हैं, अलग अलग फोटोन्स होते हैं। एक साइन वेव छोटी सी आई, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आ गई, दूसरी साइन वेव आई, डिसकंटिन्यूटी आ गई, एंड सो ऑन। सो साइन वेव कोई बहुत लंबी परफेक्ट साइन वेव नहीं होती ऑर्डिनरी लाइट के लिए, बट इन केस ऑफ अ कोहेरेंट बीम विच हैज टेम्पोरल कोहेरेंस, द बीम इज sinusoidal for large distances. So a coherent beam is a perfectly sinusoidal wave. Next kind of coherence is spatial coherence. स्पेशियल कोहेरेंस में हम बीम की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। हमें मालूम है बीम की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव का वेव फ्रंट होता है। सो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर
of the beam that is on the wave front, and in वेव फ्रंट पे हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए. इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सिंगल वेव फ्रंट, if this phase difference remains constant over a definite interval of time, then it is known as spatial coherence. तो वेव के वेव फ्रंट उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है. सो इस वेव फ्रंट पे किन्हीं भी दो पॉइंट से गुजरने वाली दो अलग अलग वेव्स के बीच में अगर कुछ टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है, तो हम कहते हैं इट हैज स्पेशियल कोहेरेंस. आई विल रिपीट, टेम्पोरल कोहेरेंस क्या था? वेव की ही डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे अगर अलग अलग टाइम्स पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. स्पेशियल कोहेरेंस में वेव फ्रंट के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है, then it is spatial coherence. Such a coherence can exist even if the two beams are individually incoherent, provided any phase change in one of the beams is accompanied by simultaneous equal phase change in the other beam. तो किसी वेव में ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरह की कोहेरेंसेस प्रेजेंट हों. अकेली टेम्पोरल कोहेरेंस हो सकती है, अकेली स्पेशियल कोहेरेंस हो सकती है. बोथ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो अगर एक वेव में कोई फेज चेंज आया और साथ के साथ साइमल्टेनियसली सेम फेज चेंज दूसरी वेव में भी आ गया, तो उनका फेज डिफरेंस फिर भी कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे इंडिविजुअली उनका टेम्पोरली फेज चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पा रहा. सो द टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अगर जो वेव फ्रंट पे हमने दो पॉइंट्स लिए, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है, वो दो पॉइंट्स एक दूसरे से कितनी भी दूर हैं, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स हैं, तो हम कहते हैं द वेव हैज परफेक्ट स्पेशियल कोहेरेंस. ऑन द अदर हैंड, अगर ये फेज डिफरेंस एक लिमिटेड एरिया पे होता है, वेव लेंथ पे जो दो पॉइंट्स हमने लिए उनकी दूरी एक स्टिपुलेटेड डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो कोहेरेंस खत्म हो जाती है. सो इफ इट हैपन्स ओनली इन अ लिमिटेड एरिया, वी से दैट the wave has partial spatial coherence, and this property is related to the property of directionality. That means किसी वेव में जितनी ज़्यादा spatial coherence होगी, वो वेव उतनी ही ज़्यादा directional होगी. So now we know that lasers में क्योंकि directionality भी बहुत ज़्यादा होती है, monochromaticity भी बहुत ज़्यादा होती है, that means laser wave has high spatial coherence and it also has high temporal coherence. Now, coherence of a wave is expressed in terms of two quantities. ये दो quantities जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें बताएंगी वेव कितनी coherent है. The first is coherence time, TC. TC is the average time during which a wave has definite phase relationship and remains साइनोसॉइडल. तो एवरेज टाइम जितनी देर के लिए एक वेव परफेक्ट साइन वेव बनी रहती है और उसमें कोहेरेंस बनी रहती है, दैट टाइम इज नोन एज कोहेरेंस टाइम. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम किसी भी पॉइंट पे वेव का करेक्ट फेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिकॉज फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा. मैथमेटिकली it is reciprocal of frequency width delta nu या bandwidth. TC is equal to 1 upon delta nu. So जितनी ज़्यादा लाइन की फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगी, उतना उसकी कोहेरेंस टाइम कम होगा, उतनी वेव कोहेरेंस कम होगी. जितनी लाइन की विड्थ कम होगी, जितनी शार्प होगी लाइन, जितनी बैंडविड्थ कम होगी, लाइन विड्थ कम होगी, उतना ज़्यादा कोहेरेंस टाइम होगा. Then next quantity that we define is coherence length. हमें मालूम है length is equal to velocity into time. So coherence length is the distance traveled by the wave in time TC, and it is maximum path difference, which still shows interference in interference experiments. So coherence length is given by velocity of light multiplied by coherence time
और अगर हम कोहेरेंस टाइम की वैल्यू पुट कर दें तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू c अपॉन डेल्टा न्यू मीटर्स। सो लेजर्स के लिए कोहेरेंस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कोहेरेंस लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर अ हीलियम नियन लेजर द कोहेरेंस लेंथ इज अबाउट 20 centimeters, whereas coherence length for sodium light is even less than a millimeter. That means sodium light 1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस तक ही कोहेरेंट रह पाती है, उसके बाद उसका फेज रैंडमली चेंज हो जाता है, जबकि हीलियम नियन लेजर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक कोहेरेंट बनी रहती है और उसके बाद जाके कहीं कोहेरेंस फेज चेंज हो पाता है। और हमारे पास ऐसे लेजर्स भी आते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी के, जिनमें कोहेरेंस लेंथ कई कई किलोमीटर्स की है। दैट मीन्स ऐसे लेजर से निकली हुई लाइट कई किलोमीटर्स तक एक परफेक्ट साइन वेव की फॉर्म में चलती चली जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया। ये क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स में से जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। प्लीज़ डू दिस क्वेश्चंस। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट। विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।